ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं जत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यापरे श्रीमद् भागवत रे प्रसंग आसे राजा परीक्षित प्रश्न पचारिचंती सुखदेव को जे महात्मन समुद्र मंथन हैला, समुद्र मंथन परे जो अमृत बाहरिला से अमृत कलश को प्रभु मोहिनी बेश धारण करी निजे हाथ रे रखिले एवं निजर सौंदर्यतार बसीभूत करी दैत्य मान को मदिरा पान कराई मतिभ्रंश कराई से मानको ये अमृत पीबार दूरेई देले एवं देवगण को अमृत पियाई देले। देवगण युद्ध कले विजयी हेले एवं इंद्र को इंद्रपद मिलगला। ये तो निश्चित भाव रे देखा गले ये दैत्य मान प्रति भगवान धोखा है ना, भगवान से को धोखा देले ना। ये धोखा पाइला परे मोर जिज्ञासा होउछि जानिबा को जे दैत्यगण कौन चुप बसिले ना पुणी प्रतिशोध नबार प्रयास कले। यहाँ पर प्रसंग सुनी ये प्रश्न सुनी सुखदेव हसिचंती मने मने भाविचंती चाहे हो जने जिज्ञासु भक्त मु आज पाइछि जहाँ मनरे जानिया पई एते आग्रह जदि श्रोता रो आग्रह न थाए वक्ता को कहिबा को भल लागे नहीं। सेति पई सुखदेव मने मने भाविचंती जाहे हो ये हो जने ठीक अर्थात उपयुक्त वक्ता श्रोता तेणु यांको आगे निश्चित भाव में सब कथा खोली कहिबा उचित। यहाँ पर सुखदेव आरंभ करछंती ते दैत्य माने एमिति काम कले जे भगवान जेमती एमान को मारी पारिबे नहीं। परीक्षित पचारचंती कौन कले दैत्य माने। सुखदेव कहचंती दैत्य माने समस्त प्रकार असत्य मार्ग अधर्म मार्ग को परित्याग करी सत्य पथ एवं धर्म पथरे चलने को लगिले यज्ञादि करने को लगिले। एमिति एक रजा से समय आसिले तांको ना होची बलि दैत्यंक राजा रजा बलिक पई 3 लोक 14 भुवन मिलला काहाकू एई राक्षस मान दैत्य मानकू। ये रजा बलिंकर पूर्वजन्म कथा एटी परीक्षित आलोचना करिसंती। रजा बलि पूर्वजन्म रे कौन थिले जणे डकायत थिले। से जानी परिले जणे सेठ किछि धन नेकी आसुचंती। से भाबिले ये धन चोरी करि नेबी मते आउ जीवन सारा चोरी करिबा को पड़िबो नाही। तेणु से कौन कले जो बाट दे सेठ आसीबे आगुरु से बाट जगिकी बसिले। यही रास्तार जो अनेक समय धरी प्रतीक्षा करेंगे
ଚୋରି କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ବଳି କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ 2ଟି ରୁଟି ବାନ୍ଧିକି ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ସେଠକୁ ଜଗିକି ବସିଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ, ଆସିଲେ ଚୋରି କରିବେ। ଭୋକ ହେଲା, ତେଣୁ ବଳି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ରୁଟିକୁ ବାହାର କରି ଖାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟେ କୁକୁର ଆସିଲା। ସେ କୁକୁର ରୁଟିକୁ ଦେଖି ଅନାଇକି ରହିଲା। ବଳି ସେ ରୁଟିଟି, ଗୋଟିଏ ରୁଟି କ'ଣ କଲେ, 2ଟି ରୁଟିରୁ ଗୋଟିଏ ରୁଟି ଏ କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଚାଲିଗଲା କୁକୁର, କିଛି ବାଟ ଗଲା, ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲା। ପୁଣି ଫେରିଆସି ରୁଟିକୁ ସେମିତି ଅନେଇକି ରହିଲା। ବହୁତ ଭୋକ ହେଉଥିଲା ବଳିଙ୍କୁ। ବଳି ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ମୁଁ ସିନା ଉପାସ ରହିଯିବି, ଏ ନିରୀହ ଜନ୍ତୁଟି, ତାକୁ କିଏ ବା ଖାଇବାକୁ ଦେବ? ଏ ତ ନିକାଞ୍ଚନ ଜାଗା, ଜନବସତି ନାହିଁ, କୁକୁରଟି ଆଜି ଉପାସ ରହିଯିବ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ବଳି କ'ଣ କଲେ, 2ୟ ରୁଟିଟି କୁକୁରକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପୁରା 24 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ 1 ଘଡ଼ି ଲାଗିଥିଲା। 2 ଥର ଯାକ ରୁଟି ଖୁଆଇବା ପାଇଁ କୁକୁରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ 24 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଥିଲା ଏ ପ୍ରୋସେସଟା। ଏହାପରେ ବଳି ଚୋରି ଡକାୟତି ସବୁ ଚଳାଇ ତାଙ୍କର ଶେଷ ସମୟ, ଚୋରି ଡକାୟତିରେ କେବେ ସେ ପାଟରୁ କେବେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଚୋରି ଡକାୟତି ତାଙ୍କର ଚାଲୁ ରହିଛି, ଜୀବନ ସାରା ଚୋରି କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଏକ ସମୟ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଏ ବଳି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ। ଯମରାଜ ଯେତେବେଳେ ବଳି ଗଲେ, ପହଞ୍ଚିଲେ, ମଲା ପରେ କେଉଁଠି ପାପ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ କେଉଁଠିକି ଯିବେ? ଯମରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ। ଯମରାଜ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ଏ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ, ଯେ କହିଲେ ବଳିଙ୍କର ପାପ ପୁଣ୍ୟ ହିସାବ କର। ମଲା ପରେ ତ ସମସ୍ତେ ଯମରାଜ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆପଣ ପାପ କରିଥାନ୍ତୁ, ଧର୍ମ କରିଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗଧାମକୁ ଗଲେ, ଯଦି ପାପ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯମ ପଚାରିଲେ ନିଜର ମନ୍ତ୍ରୀ କାହାକୁ? ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ, ଯେ ଆଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ହିସାବ କର, କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କୁହ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ କହିଲେ, ଏ ଲୋକଟି ଜୀବନ ସାରା କେବଳ ପାପ ହିଁ କରିଛି, ପାପ ହିଁ ପାପ। କେବଳ 24 ମିନିଟ୍ ଏ ପୁଣ୍ୟ କରିଛି। ଗୋଟେ ଭୋକିଲା କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି, ନିଜେ ଉପାସରେ ରହିଛି, ଏତିକି ମାତ୍ର ତା'ର ଭଲ କାମ, ନହେଲେ ଆଉ ସବୁ ପାପ ହିଁ ପାପ। ଯମରାଜ ପଚାରିଲେ ଏ ବଳିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ, ଯେ କୁହ ତୁମେ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ଭୋଗିବ ନା ଆଗେ ପାପର ଫଳ ଭୋଗିବ? କେଉଁ ଭୋଗ, କେଉଁ କର୍ମର ଫଳ ତୁମେ ଆଗେ ଭୋଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ପାପର ନା ପୁଣ୍ୟର? ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କଲେ, ସେ ସମୟରେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ବଳିକୁ ଦେଖିଲେ। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଶାରାରେ କହିଲେ ଯେ କହ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ଆଗେ ଭୋଗିବୁ ବୋଲି। ବଳି କହିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେ ମୁଁ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଯେଉଁ ବଳିଙ୍କର ଯେଉଁ ରୂପରେ ଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପୁଣ୍ୟ ଭୋଗିବି। ଯମ କହିଲେ କହ କ'ଣ ତୋର ଭୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ତୋର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ? ତୋ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛୁ, ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କି ଫଳ, ପୁଣ୍ୟର କି ଫଳ ତୁ ଭୋଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଚୁପ୍ କରି ବଳିକୁ କହିଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରାସନରେ ବସିବି, ଏ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ହଉ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରାସନରେ ବସିବି। ବଳି କହିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାହା ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଏ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ବଳି କହିଲେ ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରାସନରେ ବସିବି। ଯମ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଇନ୍ଦ୍ରାସନରେ ବସିବୁ ତ ତୋତେ ବସାଯିବ। ଏହାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବୁଝାଗଲା କେବଳ 24 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଏ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 24 ମିନିଟ୍ର କଥା। ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜି ହେଉନଥାନ୍ତି।
तथापि अनेक बुझेला सुझेला परे ये 24 मिनिटा केतिकी समय एतिकी समय तुमको इंद्रपद छाड़ा पड़ो एवं 24 मिनिट या आसन देवाक पड़ो यापर जिते एत कम समय कथा मुंडे पशिला इंद्रकर इंद्र कौन कले इंद्रपद छाड़िले एवं बलि जो पूर्वजन्म जो बलि थे सी कौन है बसिले कौटी इंद्रासन में बसिले यापर बलि इंद्रासन बसिया पूर्वर शुक्राचार्य सहित आलोचना पर्यालोचना कले शुक्राचार्य ज्ञान देले बलि को बलि सब कथा शुक्राचार्य शुणी सारी इंद्रासन में बसिले जेमती इंद्रासन में बसी बलि पूर्वजन्मर से कौन कले सांगे सांगे बुद्धिभ्रष्ट है बलिंकर कारण जो मान मर्यादा पद प्रतिष्ठा आसे बुद्धिभ्रष्ट हुए ही हुए खूब कम लोकंर हुए ना शुक्राचार्य कथा भूलीगले अप्सरा मान को कहले नृत्य कर चाल भोजन देकी आस भल वस्त्र हण या कर त्या कर आनंदमय जीवन बिताइबा लगिले 10 मिनिट एमती बिताई देले शुक्राचार्य भाविले या कौन करने को कहुला ये कविचरा करुच्ची कौन ये बुड़ेब सब एक दिव्य अल्प समय अच्छी तले गोटे पत्थर पड़ा शुक्राचार्य कौन कले यह उठाइले एवं जोर रे बलि मुंड को मारिले जेमती बलि देहरे बाजी टेका बलिर कौन है मने पड़ जाइए मोर कौन करवा दरकार से डाकिकी डाकिले जे गुरुजी एठा को आसंतु शुक्राचार्य ए बलि पाखक गले हाथ रे जल धरला बलि कहला 3 लोक 14 भुवन मालिक मु समस्ते कहले ये अल्प समय पाई आउ अल्प समय रहा तुम हाथ में ये अल्प समय पाई तुम 3 लोक 14 भुवन स्वामी बलि कहला ये 3 लोक 14 भुवन को मु मो गुरु शुक्राचार्य को दान आकार अर्पण करुच्ची जी समय हो मो हाथ में अच्छी जेहेतु मु बर्तमान रजा तेणु मु जहाँ चाहिए से हम तेणु ये 3 लोक 14 भुवन मु मो गुरु को बर्तमान दान करुच्ची अर्थात शुक्राचार्य को दान करुच्ची अल्प समय हेल्ले जेहेतु रजा मत दान करी ना बर्तमान मु हूँ जिनसर मालिक मु चाहिए दान करी ये नियम देखई बलि कौन कले शुक्राचार्य को दान करने को कहले से राज्य को शुक्राचार्य दैत्यगुरु को बलि राज्य दान करथिले सेतिपई बलि को दैत्यक राजा ए जन्म रे करा जाइथिला दान करथिले काहाकू शुक्राचार्य को जेहेतु दान करथिले ये जो राज्य को स्वर्ग को सेइथिपई शुक्राचार्य कौन कले जो दैत्य मान हाथ को क्षमता आसीथिला से दैत्य मानक रजा क्या करते बलि को एबे बहुत बड़ से बलि बर्तमान रजा होती कौटी दैत्य मानकर एबे बहुत बड़ यज्ञ करने को जाउछंती बलि शुक्राचार्य सह मिसी दीति दैत्य माता बर्तमान राज्य रही क्या हाथ में बलि हाथ में जितेबाला राक्षस मैंने राज्य नहीं जाते जो बलि हाथ में रही राज्य दीति दैत्य माता अदिति होचुन देवता माता देवता माता स्वामी कथार जाइचंती भगवान विष्णु को पाखक एवं कहते जमिति हो इंद्र को पुणी थे इंद्रपद फेराई दि जाऊ बर्तमान राज्य रही क्या हाथ में बलि हाथ में तेणु इंद्र को जो इंद्रपद फेर देवाई कहुई तेणु भगवान विष्णु कहते मु तो बलि हूँ जड़े धर्मीय रजा ता सहित युद्ध करी केबे भी आनी पारिबिनी राज्य फेराई पारिबिनी देवता मानू कारण जितेबाला कहीं भूल करे अन्याय करे से मु जाए ताकू ठीक मार्ग को आने ये राजा बलि बहुत धर्मी धर्मीय परायण लोक दान धर्म बहुत करे तेणु ताकू मु कदापि ताहित युद्ध करी पारिबि नाही एवं से मोर
ଭକ୍ତର ବଂଶଜ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହାନି ତାର କରିପାରିବି ନାହିଁ, ତାକୁ ମାରିପାରିବି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ତୁମେ କହୁଛ ମୁଁ ତୁମ ପୁତ୍ର ବାମନ ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବି ତୁମର ପୁତ୍ର ହୋଇକି, ଏବଂ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଦାନ ମାଗି ବଳିଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ଆଣି ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଣୁ ଅଦିତ୍ୟଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କ'ଣ କଲେ, ବାମନ ଅବତାର ଧାରଣ କଲେ। ଭଗବାନ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଛୋଟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସିଧା ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଆସିବା ଟିକେ ଡେରି ହେଲା। ରାଜା ବଳି ସେତେବେଳକୁ ଦାନ ଇତ୍ୟାଦି କରିସାରି ଯଜ୍ଞରେ ବସି ସାରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ଆସି ଆବାଜ ଲଗାଇଲେ, ତେରେ ଦ୍ୱାର ଖାଡ଼ା ହେ ଭଗବାନ, ଭକତ ବର ଦେ ରେ ଝୋଲି। तेरे द्वार खाड़े भगवान, भक्त भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़े आसान, जुग जुग रहेगा तेरा मान। रे भक्त भर दे रे झोली। प्रभु आजी बामन अवतार गाउचंती, मागुचंती काहाकू, बलि को, हे बलि तो द्वार रे आज भगवान ठिया होइचंती, तू कौन कर, झोली भरीदे, अर्थात मो पात्र को भरीदे। भगवान इशारा करुछंती बलि को, बलि आखि खोली देख, तो द्वार को जी आसीची साधारण नुहे। चारिआडे अना, आकाश को देख, तो चतुर्पार्श्व को अवलोकन कर। ये मु आसिला परे जोपरी भाव में परिवर्तन आसी सबुरे ताकू देखी अनुध्यान करने को चेष्टा कर। तो द्वार रे जे ठिया होइची से साधारण नुह, से होची असाधारण। ये परिवर्तन ही तोते जनईदेव जे जी ठिया होइची से असाधारण बोली। एवं तू हेउचु महादानी, ठिया होइतबा लोक मध्य जने दान नबार प्रकृत पात्र। आज दान करिबारे बलि तू आदौ संकोचता करना, जहाँ अच्छी सबु दान कर। तुम दान केबे भी अव्यर्थ जीवनी। आज जहाँ दान करिवु निश्चित भाव रे तार फल मु तोते प्रदान करिवि। दान देला वाला, दानर प्रकृत पात्र, दान देवार प्रकृत पात्र हेउछु तू, दान नबार प्रकृत पात्र हेउछि मु। तो दुआरे मु आज ठिया होइछि, डेरी करना वाली बलि आगे आ। राजा बलि कहउचंती, आज काहेकि मन परिवर्तन हो जाइछि बलिंकर। बलि कहउचंती, आज काहेकि मोर मन हेउछि मोर सबु किछि ई जाचना करुथुवा छोट बालक को देई देवा पाई। भगवान कहउचंती, मोर किछि दरकार नाही रे बलि, मोर दरकार 3 पाद भूमि। बलि कहिचंती जे आपण को छोटे एते छोट ये 3 पाद भूमि नहीं करिवे कौन। भगवान कहिचंती, मो होउची जने संतुष्ट ब्राह्मण, मोर मात्र ये 3 पाद भूमि दरकार, मोर अन्य किछि आवश्यक नाही, अन्य किछि नबाक मु चाहू नाही। बलि बाध्य करी कहिचंती जे मु दान करे, दान करिबार मोर ना अछि। जेतेबेले समग्र लोक जानिबे, समग्र भूमंडल जानिबो जे मु दान करिछि काहाकू, जने बालकंकु, ब्राह्मण बालकंकु, लोक कौन कहिबे ए बालक सिना मागिबा भूल करिदेला। बलि भली दानी सी कौन चाहिए अधिका किसी दान करि पारि नथांता, सिना कम मागिले ए बलि कौन अधिका देई पारि नथांता, ए कथा भाविबे। तेणु 3 पाद भूमि नु आउ कौन मागुच मागंतु। सांगे सांगे भगवान कहिचंती, बामन अवतारी भगवान, जे मोर किछि दरकार नहीं, मते 3 पाद भूमि दरकार।
मोर तो उपर विश्वास हेउना तू प्रतिज्ञा कर जे मते 3 पाद भूमि दबु बोली। यहाँ पर भगवान को कथा शुणी शुक्राचार्य कौन करछंती मने मने चिंतन करुछंती ये तो एड़िकेटिए बालक 3 पाद भूमि पाई बाध्य करुची ए बलि को कहीं आखि बंद करिसंती शुक्राचार्य। जेमती शुक्राचार्य आखि बंद करिसंती ध्यान बलरे जानी पारिछंती ये वामन अवतारी बालकटी आउ के नुह से होउछंती भगवान विष्णु। पुणी थरे से राज्य संपूर्ण राज्य नवापाई पुणी दैत्यकूल को पुणी थरे प्रतारणा करने आज विष्णु ये वामन अवतार आसी अवतीर्ण अछंती। तेणु से बलि कहते बलि जमा प्रतिज्ञा करनी ये भगवान विष्णु आसीचंती तोते कांगाल करने को बलि कही अहोभाग्य जदि मो पाखक भगवान विष्णु को हाथ पताइबा को पड़ला ताहले मु भावुची मोठू भाग्यवान कहीं नहीं। ये दुनिया समस्त को सब किछि देइछि आज भगवान को दबार सौभाग्य जिते आसी गुरुदेव मते मना करतु नहीं। मु जानी आज जहाँ देवी मोर अव्यर्थ हब नहीं सत पात्र में आज दान करने को जाऊँगी। तो हे गुरुदेव मो पर कौन चाप आपण पकातु नहीं। भगवान विष्णु को पाखरे जल धरी प्रतिज्ञा करिछि बलि जे मु आज जहाँ मागिबे दवाई प्रस्तुत। यहाँ पर भगवान कहते मोर 3 पाद भूमि दरकार। प्रभु कहते एबे बलि कही मु देली प्रतिज्ञा करदेली। भगवान तापर कौन करछंती विशालकाय रूप बढ़ाई अनाई रही बलि देखुची आकाश पर्यंत मुंड लंबी प्रभुंकर मुंड लंबी से जाए परमाने गोड़ केते लंबी थी आपण मैंने अनुमान करें। 2 पाद बढ़ाई सबू ले जाइछंती प्रभु त्रिभुवन प्रभु का अख्तियार को चली जाइछि। अहंकार भांगी बलिर जे मु एते दानी मो पाखे एते अच्छी मु जहाँ को जहाँ पारुछि दान कर दौछि। बलि जो मनरे भावे आज ता अहंकार चूर्ण हो जाइछि। मुंड नई ठिया होइछि बलि दवापाई आ मो पाखे किछि नाही। यही समय भगवान विद्रूप करी कहिचंती वामन अवतारी भगवान जे बलि एबे कौन दबु। बलिकर अहंकार थिला सामान्य जे मो भली दानी ए संसार रे कहीं नहीं। मु जहाँ को जहाँ कहूची जहाँ को जहाँ शपथ करे दबा को पछुक हटे नहीं। आज भगवान आज बलिर गर्व अहंकार को भांगी देइछन्ते अरे बलि तो पाखे कौन अच्छी तू दे पारिबु। जो अहंकार करूथलु भगवान कही नांती भाबुचंती से अहंकार कुआड़े गला। बलि मध्य मने मने भाविची मु भाबुथली मु जहाँ को जहाँ चाहूँची ताहा देई पारुची मोठू दानी कहीं नहीं। लज्जारे मुंड नई जाइछि आज बलिर भगवान को साक्षी आखि मिसाई अनाई पारु नहीं बलि मुंड पोति ठिया होइछि। से समय विद्रूप करी प्रभु कहते वामन अवतारी भगवान जे बलि मात्र 2 पादरे तोर सर्वस्व मु नहीं गली तोते कांगाल करदेली बलि एबे 3य पाद मु कोठी थोइबी तू मते जगह दे। बलि सांगे सांगे चिंतन करिछि जे 3य पाद भूमि आउ तो किछि नाही मो पाखरे देवी कोठू। बलि दानी धर्मी सांगे सांगे मुंडू को चिंतन आसी भगवान को प्रश्न करिछि प्रभु गोटे प्रश्न मु पचारुछि मो प्रश्नर उत्तर दियंतु। भगवान कहते कि प्रश्न पचारुच पचार सांगे सांगे बलि कहिछि प्रभु गोटे प्रश्न करी आपन को कहिबे कौन ना प्रभु दानी बड़ दान बड़ ना दानी बड़। प्रभु कहते
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦାନୀ। ଏହାପରେ ବଳି କହିଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଦାନ ଦେବାକୁ ଅକ୍ଷମ, ହେଲେ ଦାନୀ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ମୁଣ୍ଡକୁ ନଇଁ ଦେଇଛି ବଳି କହିଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଦାନ ଦେବାକୁ ସିନା ଅକ୍ଷମ ହେଲି, ହେଲେ ଏ ଦାନୀର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପିତ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ପାଦ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏ ବଳିର ମୁଣ୍ଡରେ। ଏହାପରେ ତୃତୀୟ ପୟର ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ, ବଳିର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ବଳିଙ୍କର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ପ୍ରଭୁ ଅଦିତିଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କଥା ରକ୍ଷା କଲେ। ସ୍ୱର୍ଗ ପୁଣି ରଜା ହେଲେ କିଏ? ଇନ୍ଦ୍ର। ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ବଳି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ। ବଳି ଧର୍ମୀୟ ପରାୟଣ ଲୋକ ଥିଲେ, ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଥିଲା, ଯିଏ ଯାହା ମାଗୁଥିଲା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅହଙ୍କାର ଆସିଯାଇଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଅତି ଗର୍ବେ ହତଲଙ୍କା, ଅତି ମାନେ ଚକୌରବ, ଅତି ଦାନେ ବଳିର ବଧ, ଅତି ସର୍ବତ୍ର ଗହିତମ୍। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେବେ ବି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଅତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅତିଟା ସବୁବେଳେ ହିଁ ଖରାପ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।